Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. With this famous verse, I, Rakesh Chumuli, welcome all the participants present over here and the guests along with them. Once again, Sanskriti production has come before you with all its glory and glamour, and this channel Abhi Tak once again welcome you people on the stage of Genius Con Season 3. We are here representing the senior group of this Genius Con Season 3 contest. Out of thousands of students from the Moradabad Mandal, you people are so much fortunate to come victorious among those students, and now you are representing your respective schools and colleges on this stage of Sanskrit production and channel अभी तक. ये आप लोग भाग्यशाली प्रतिभागी जो इन हजारों विद्यार्थियों में से अपना स्थान बनाते हुए इस क्वार्टर फाइनल चरण तक पहुँचे हैं. इस चरण में मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए अगले राउंड, that is our semi-final round, and you will be there again just to prove your genius on the stage of Genius Con Season 3. इससे पहले कि मैं इस प्रतियोगिता के आपको नियमों से परिचित कराऊं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि क्रम वाइज एट फर्स्ट इट इज नंबर 1, that is number 2, and till the last number 6 contestant, you please make your introduction so that we should start the competition further. So I request contestant number 1 just to make his introduction at first. My name is Vasundhara Chauhan from Standard 10. My school name is Holy Angel Senior Secondary Academy Dhampur. I belong to Ibrahimpur Lal Seta, nearby Nehru. Thank you, Vasundhara. So after having her introduction here on the stage, so now it is the turn of contestant number 2. Now I request him, please make your intro before us. Myself Punit Kumar from Oxford Public Senior Secondary School, Nehtor, and I am the student of class 9th. I live in Nehtor. So now on this stage of Genius Con Season 3, it is Mr. Puneet representing the school Oxford Public School, Nehtor. So now I request participant number 3 to make his introduction here. This is Lakshita Chauhan from Roots International School, Noorpur, from class 12th, and I am belong from Noorpur. Yes, we have Lakshita Chauhan from Roots International Noorpur,
with us here on the stage of Genius Con Season 3, and it is the senior group. So the contestant number 4 representing his school, I just request her to make an introduction before we begin. My name is Priyanshi Singh. I study in class 10th. My school name is Priyanka Modern Senior Secondary School. I live in Dhampur. It's so nice that Priyanshi Singh from Priyanka Modern Senior Secondary School is among us on the stage of Genius 3. So now it is the turn of participant of 5 to make her introduction so that we may move forward. Participant number 5. My name is Gulista. I study class first year. My school name Lokpriya Inter College, Kiran Krishna. Yes, contestant 5 Gulista representing her school, and now the last participant is before us. So I would request the last participant number 6 to make her introduction. My name is Parim from class 12 and my school name is Saraswati Vidya Mandir Inter College and I belong to Abjagar. So one more participant from Saraswati Vidya Mandir Abjagar. Farheen is with us here on the stage of Genius Con Season 3. So after the introduction of all these 6 participants present over here on the stage, I welcome once again all of you on the stage of Genius Con Season 3. आप सभी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर इस क्वार्टर फाइनल स्टेज पर पहुंचे हैं। ये इस बात का अपने आप में एक प्रूफ है, एक सबूत है कि आप अपने दम पर कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में सफल होने में सक्षम हैं। सो आफ्टर हैविंग योर इंट्रोडक्शन वन बाय वन, सो नाउ आई मूव टू टेल यू द रूल्स रिगार्डिंग दिस कॉम्पिटिशन। इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल राउंड के 6 चरण हैं, जिसमें से 6 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। एंड आउट ऑफ दीज 36 contestants from 6 groups, so only 18 contestants, 3 from each group, will come to the second round, that is our semi-final round. And out of those 18, only 6 contestants will go to pre-finale round, and that is among 6 contestants who will be there participating in this pre-finale round. Out of them, only 4 fortunate participants among you people, they will come to the final round, that is our finale. And out of those 4, 3 would be selected, 3 would be chosen as first, second and third contestant out of this contest of Genius 3. So you have to be very much alert while you are participating in your schools and this competition here on the stage. So team questions will be asked to you. Out of every question there are 4 options. You have to select the correct option and you have to speak out what correct option is according to you. इस प्रतियोगिता में प्रश्नावली पूछते समय जब मैं आपके सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन पर क्वेश्चन रखूंगा, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा आपका समय शुरू होता है अब, या योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे अब और नाउ बोलने के तुरंत बाद आप में से प्रतिभागी अपने अपने बजर दबाएंगे। जो भी प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाने में सफल होगा, उसी प्रतिभागी को उस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। सो इट्स माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द 6 पार्टिसिपेंट्स, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अटेंटिव, एंड एज सून एज आई से आपका समय शुरू होता है अब, यू हैव टू पुट द बजर एंड देन यू विल हैव द चांस टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। If you make the correct answer, you will secure 20 points by making correct answer. लेकिन यदि आपने दुर्भाग्य से गलत आंसर दिया तो आपको 10 अंक खोने पड़ेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर उन 4 ऑप्शन में 4 जो आपका ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, उसमें से मेक द करेक्ट आंसर। और इस बात का मैं फिर आपको सचेत करता हूँ कि मेरे यहाँ के निर्देश से पहले आप बजर बिल्कुल न दबाएं, अन्यथा आपको 10 अंक खोने पड़ेंगे जल्दी बजर दबाने के कारण। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, नाउ बी वेरी वेरी easy and comfortable, and I'm just going to start the competition, this Genius Con Season 3 of all of you.
So now be alert, your eyes must be there on your monitor sets. Though all the participants have introduced themselves one by one, लेकिन मैं प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक बार जितने भी प्रतिभागी इस मंच पर यहाँ विराजमान हैं, मैं उन सबका नाम पुकारना उचित समझता हूँ। पहले प्रतिभागी वसुंधरा चौहान, शी इज रिप्रेजेंटिंग होली एंजल एकेडमी धामपुर। सेकंड पर बैठे हैं मिस्टर पुनीत एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल नेटौर। तीसरी प्रतिभागी हमारे बीच में लक्षिता चौहान हैं, जो रूट्स इंटरनेशनल स्कूल नूरपुर को का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। चौथे कंटेस्टेंट मिस प्रियांशी सिंह एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग प्रियंका मॉडल स्कूल धामपुर। पांचवें प्रतिभागी हैं गुलिस्ता और वह अपने लोकप्रिय इंटर कॉलेज चांदपुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एंड द लास्ट कंटेस्टेंट हु इज अमंग अस, शी इज फरहीन एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग सरस्वती विद्या मंदिर अफजलगढ़। सो नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन मेड ऑफ ऑल दीज 6 पार्टिसिपेंट्स, मैं आपके सामने प्रश्नावली का पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। एंड नाउ बी अलर्ट, सी जस्ट लुक एट योर monitor sets. Wish you all the best. Now the question number 1 that appears in your monitor sets, please be attentive. And the question is, according to the Hindu calendar, in which month Holi is celebrated? The question is, according to the Hindu calendar, in which month Holi is celebrated? And the 4 options are A. Kartik, B. Chaitra, C. Falgun, D. Ashar. एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, हिंदू मान्यता के अनुसार होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? और आपके सामने 4 विकल्प हैं, अ कार्तिक, बी चैत्र, स फाल्गुन और द आषाढ़। आपका समय शुरू होता है अब। सो वी स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 4 और इस चौथे प्रतिभागी ने प्रियांशी सिंह ने अपना बजर दबाया है। And she is the first lucky one to make the answer of the question. प्रियांशी, आपके अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट मानती हैं? According to me, this is the second option, प्रियांशी कहती हैं कि इस प्रश्न का हिंदू मान्यता के अनुसार होली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, कि उनके अनुसार जिसका विकल्प बा है, ऑप्शन बी चैत्र, she thinks that is the correct option. So now let's see how far she is correct to make an answer. Sorry Priyanshi, the correct answer is C. Option is Falgun. Falgun, according to Hindu calendar, Falgun is the month in which we celebrate Holi festival. So no problem. Though you have lost 10 marks just by making the wrong answer, लेकिन अभी प्रश्नवाली बहुत लंबी है, इसके लिए आप अपना साहस और हिम्मत बांधे रखें और अगले प्रश्नों का सही उत्तर देकर अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच कंटिनेंट वुड यू फाइंड द सहारा डेजर्ट? द क्वेश्चन इज, यू हैव टू से इन विच कंटिनेंट वुड यू फाइंड द सहारा डेजर्ट एंड योर ऑप्शंस आर ए एशिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका एंड डी अंटार्कटिका। द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? यू हैव टू से सहारा रेगिस्तान and the options are A. Asia, B. Australia, C. Africa and D. Antarctica. आपको बताना है कि इन किस महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है। and your time starts now. Yes, it is contestant number 1, that is Vasundhara. So Vasundhara, what option do you find the correct one according to you? आपके विचार से इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है? According to me, answer is Antarctica. She says Sahara Registan, Sahara Desert is found in this continent Antarctica. So now we have to see how far she is correct to make this answer of this question. देखते हैं कि वसुंधरा ने कहाँ तक अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है इसका उत्तर देने में। Sorry वसुंधरा, your answer is not correct, and the correct answer is option C. It is Africa. And you know, this Sahara desert is the most famous desert. I think in your geography class 8th 9th you might have read about this Sahara desert. दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा
रेगिस्तान है और ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सो सॉरी टू से, बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू हैव लॉस्ट योर 10 पॉइंट्स। लेकिन जैसा मैंने पहले प्रतिभागी से कहा कि अभी प्रश्नावली बहुत लंबी है और आप अपनी बुद्धि का और अच्छा परिचय देते हुए अन्य प्रश्नों का सही उत्तर दें और अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में सफलता पाएं। मैं जानना चाहूँगा इसमें वसुंधरा कि आप इसमें ज्योग्राफी में आपकी रुचि कैसी है, क्योंकि आपने इसका उत्तर दिया, हालांकि आपका उत्तर सही नहीं था, लेकिन जो आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें ज्योग्राफी में आपकी रुचि कैसी है, बताएं। सर, so weak. So weak because out of 4 subjects, including this one subject, geography is also one of the important part of that. तो उसमें क्योंकि मैप भी बनाने के लिए आता है, तो भविष्य में जरा उस पर और ज़्यादा फोकस करें और मैप्स में जो इस प्रकार की कंटिनेंट्स हैं, रिवर्स हैं, सो उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करें और अपने ज्ञान को और अधिक तेज़ और बढ़ाएं। सो नाउ वी मूव टू द next question, that is question number 3. Please be attentive to your monitor sets, and the question number 3 appears on your set there. And question number 3 is, who was the first deputy prime minister? First deputy prime minister of India. Just make the question. Who was the first deputy prime minister of India? And your options are A. Maulana Azad, B. Morarji Desai, C. Vallabhbhai Patel, and D. Chandrasekhar. These are the 4 options of the question. And the Hindi version of the question is, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रथम उप प्रधानमंत्री आपको बताने हैं और आपके ऑप्शन हैं A. मौलाना आजाद, B. मोरारजी देसाई, C. वल्लभ भाई पटेल और D. चंद्रशेखर। आपको बताना है कि इन 4 में से कौन भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री थे और आपका समय शुरू होता है अब। It is contest number 3. Lakshita, she has made an attempt to make the answer of this question. So Lakshita, आप बताएं कि आपके बुद्धि के अनुसार इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सर, आई थिंक ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लक्षिता कहती हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी है, वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं, लक्षिता ने बहुत बोल्ड होकर इसका उत्तर दिया है, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर इसका उत्तर दिया है। नाउ लेट्स सी हाउ फार शी इज करेक्ट टू मेक एन आंसर, एंड सो वी कम टू द करेक्ट आंसर। यस, वल्लभ भाई पटेल was the first deputy prime minister of our free India, and by making the correct answer she has secured 20 points. उसने अपने खाते में 20 अंक अर्जित किए इस प्रश्न का सही उत्तर देकर, और इन 3 प्रश्नों की श्रेणी में हमें पहली बार सही उत्तर प्राप्त हुआ। सो वंस अगेन वी जस्ट क्लैप फॉर हर। आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और ये प्रश्न राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो क्या आपकी राजनीति में विशेष रुचि है? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि विशेष रुचि हो राजनीति में, पर हिस्ट्री जब सुनते हैं तो वल्लभ भाई पटेल को, मतलब हमारे अकॉर्डिंग वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, तो वो बन नहीं पाए, तो वाइस प्राइम मिनिस्टर उनको बना दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। शी हैज मेड अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन कि वल्लभ भाई पटेल उस समय के राजनीति में एक स्टेलवर्ड थे, और जैसा उन्होंने कहा कि वह किन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री, हमारे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो उन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था इस। सो शी हैज मेड अ वेरी करेक्ट आंसर। सो नाउ वंस अगेन प्लीज बी अटेंटिव, वी आर मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 appears on your monitor screens. That is, which Indian brand uses the tagline "The Taste of India"? It's a very famous question and known to most of the people. So the options of this question, 4 options are A. Govardhan, B. Amul, C. Madhusudan,
डी पराग. These are the 4 options this question. The Hindi version of the question is कौन सा भारतीय ब्रांड द टेस्ट ऑफ इंडिया की टैगलाइन अपने लिए प्रयोग करता है? कौन सा भारतीय ब्रांड द टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन का प्रयोग करता है? और आपके सामने विकल्प हैं आ गोवर्धन, बी अमूल, सी मधुसूदन और डी पराग. ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके विचार से उचित है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इट इज कंटेस्ट नंबर 6. फरहीन हैज ट्राइड टू मेक हर आंसर. सो फरहीन, आपने बजर दबाया. ये मंच आपसे जानना चाहेगा कि आपके विचार से इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है. कृपया हमें बताएं. According to me, this answer right was Madhusudan, C. Farin says the taste of India tagline, ये C मधुसूदन इस टेस्ट ऑफ इंडिया टैगलाइन को अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करता है. देखते हैं कि फरहीन का ये प्रयास कहाँ तक उचित है. सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज अमूल. अमूल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. और ये बहुत एक अपने आप में प्रचलित और लोकप्रिय टैग है. अगर आप लोग टीवी न्यूज़ देखने के शौकीन हैं या टीवी पर और दूसरे कार्यक्रम देखते हैं तो प्रतिदिन ये अमूल का विज्ञापन और ये टैग लाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा. सो फरहीन, सॉरी टू से बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर यू हैव मिस्ड 10 पॉइंट्स. आपने गलत उत्तर देकर 10 अंक खो दिए. कोई बात नहीं. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, आपने एक कहीं हिंदी की लाइन पढ़ी होगी. सो अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं. उनके सही उत्तर देने का प्रयास करें और अधिक से अधिक अंक अर्जित करें. धन्यवाद. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर इट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन नंबर 5. The question is, which of the following is the capital of Ethiopia? Once again, the question is related to history and geography. The options are A. Abiya, B. Dar es Salaam, C. Addis Ababa, and D. Harare. These are the 4 options. And the Hindi version of the question is, इथियोपिया की राजधानी कौन सी है? इथियोपिया एक देश है, उसकी राजधानी के बारे में आपको बताना है. उसके 4 ऑप्शन हैं A. अबिया, B. दार एस सलाम, C. आदिस अबाबा, D. हरारे. ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन इथियोपिया की राजधानी हो सकता है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लगता है कि इन 6 प्रतिभागियों में से किसी भी प्रतिभागी को इस प्रश्न का उत्तर की जानकारी नहीं है. तो मैं अब अगले प्रश्न को बढ़ता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं ताकि आपको भविष्य में इस विषय में जानकारी रहे. एंड द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन दैट इज सी आदिस अबाबा. आदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है. और ये वैसे कभी आप जैसे जीके के उसमें प्रश्न पढ़ते होंगे 6, 7, 8, 9, 10 में आपने ज़रूर पढ़ा होगा. उसमें कंट्रीज एंड द कैपिटल्स, कंट्रीज एंड द करेंसी, ये सब लोगों ने पढ़े होंगे. तो प्लीज़ दोबारा से इसको फ्रेश करने के अपने माइंड में कोशिश करिए. दीज आर वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि इसका आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया किसी ने प्रतिभागी ने, तो इसी प्रश्नावली के क्रम में अगले प्रश्न को बढ़ते हैं. और आपका अगला प्रश्न आपके मॉनिटर स्क्रीन पर है. इन विच सिटी ऑफ हरियाणा डांसर सपना चौधरी बिलोंग्स? टू विच सिटी ऑफ हरियाणा dancer Sapna Chaudhary belongs? And the options are A. Faridabad, B. Karnal, C. Rohtak, D. Hisar. And the Hindi version of this question is नृत्यांगना सपना चौधरी हरियाणा राज्य के किस शहर की रहने वाली है? क्वेश्चन आप सबकी समझ में आ गया होगा. और अब मैं आपके सामने उनके 4 विकल्प रखता हूँ. A. फरीदाबाद, B. करनाल, C. रोहतक, D. हिसार. बहुत एक प्रसिद्ध नाम हो गया है अभी ये, और केवल भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी काफ़ी इसके नाम की चर्चा है. आपको बताना है कि सपना चौधरी इन 4 शहरों में से किस शहर में रहने वाली, किस शहर की रहने वाली हैं.
and your time starts now. Yes, very good. It is a contestant number 5, Gulistan. She has tried her best to make the answer of this question. गुलिस्तान ने प्रयास किया इस प्रश्न का सही उत्तर देने का. गुलिस्तान, सबने ये नाम सुना होगा. मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी जो बैठे हैं इन सभी ने इस नाम को जरूर सुना होगा. तो गुलिस्तान बताएं कि इसका सही उत्तर आपके विचार से क्या हो सकता है. देव करनाल. गुलिस्तान कहती हैं कि जो हमारी ये नृत्यांगना है, डांसर सपना चौधरी, हरियाणा के करनाल शहर की रहने वाली हैं. देखते हैं उसने एक प्रयास किया है, कहाँ तक उनका प्रयास सफल है, इसको आंसर के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं. सो आई मूव टू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल से इट इज सी, रोहतक. वह रोहतक की रहने वाली हैं. फिर भी हमारी इस प्रतिभागी ने इस प्रश्न का उत्तर देने का गुलिस्तान ने प्रयास किया. भले ही उसका आंसर सही नहीं बैठा, लेकिन उसके प्रयास की सराहना करने के लिए हम सब उसका उत्साहवर्धन करते हैं. इसी प्रकार से सबको प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए. और ऐसा कुछ भी नहीं है. और कहा जाता है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में. और आप जब गेम्स और स्पोर्ट्स में जब आपकी शपथ होती है, उसमें ही कहा जाता है कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स इन कंपैरिजन टू विन और लूज. खेलों में भाग लेना परम आवश्यक है, जीतना और हारना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसमें भाग लेना. तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड while you are making the answer of these questions that are on your monitor sets. तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर. और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी अलर्ट नाउ. And the next question, 7, that appears in your monitor says it is, when did Mother Teresa win the Nobel Peace Prize? When did Mother Teresa, a famous name, win the Nobel Peace Prize? And the options are A, in the year 1975, B, in the year 1979, C, in the year 1981, and D, in 1985. You have to find out the correct year when she received this Nobel Peace Prize. And the Hindi option of the question is, मदर टेरेसा ने किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जीता. आपको सही वर्ष चुनकर बताना है. और आपके ऑप्शन हैं A 1975 1975, B 1979, C 1981 और D 1985. You have to find the correct answer of this question. और आपका समय शुरू होता है अब. Yes, it is contestant number 6. She is Farheen once again. She has tried her best to make the correct option of this question. सभी ने नोबेल पुरस्कार के बारे में सुना होगा और सभी ने इस नाम, बड़ा महान नाम है मदर टेरेसा, इसके विषय में सुना होगा. तो फरीन, आप बताएं कि आपने इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन चुना जो आपके विचार से इसका सही उत्तर हो सकता है. C 1981. फरीन कहती हैं कि मदर टेरेसा ने ईयर 1981 में विश्व का पीस नोबेल प्राइज जीता. देखते हैं कि फरीन ने बहुत विश्वास से अपना उत्तर दिया है. उनका विश्वास कहाँ तक खरा उतरता है. सो नाउ वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फरीन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड द ईयर इज 1979. सो आई एम सॉरी टू से आपका प्रयास उतना सफल नहीं हुआ जितनी आपको आशा थी और इसीलिए आपका ये उत्तर सही नहीं हो पाया और आपने गलत उत्तर देने के कारण 10 अंक खो दिए. और आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय था क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम इसको अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे. सो आई शुड टेल यू, मदर टेरेसा एक बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ जो समाज सेवा में गरीबों की और जो हमारे बीमार समाज के व्यक्ति रहे हैं उनकी सेवा में उन्होंने सारा जीवन अर्पित किया और इसीलिए उनको क्रिश्चियन समाज ने संत की उपाधि से नवाजा. उनको लास्ट में सेंट की उपाधि दी गई मदर टेरेसा को. और नोबेल प्राइज ये स्वीडन के सर अल्फ्रेड नोबेल हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति ज्ञान को दान कर दी और वो ट्रस्ट हर वर्ष ज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना जो व्यक्ति वर्ष में
सर्वोत्तम प्रयास करता है ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में, उसको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसको $1,00,000 की राशि और साथ साथ जो पुरस्कार है उसको दिया जाता है। ये सर एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये पुरस्कार विश्व का बहुत सम्मानित पुरस्कार है। प्रश्नों की क्रम के साथ साथ मैं सभी प्रतिभागियों से एक एक करके ये जानना चाहूँगा कि उनका किस क्षेत्र में, किस विषय में उनकी विशेष रुचि है और जिसमें वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो प्रतिभागी नंबर 1 वसुंधरा से मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी जो विशेष रुचि का क्षेत्र है, वो चाहे शिक्षा में हो या शिक्षा का अतिरिक्त कोई हो, हमें बताने का प्रयास करें अपनी विशेष रुचि का क्षेत्र। सर, सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड हॉबीज डांसिंग, रीडिंग। बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी विशेष रुचियों के बारे में बताया कि एक तो उनको कंप्यूटर में विशेष रुचि है, और क्योंकि हम लोग कंप्यूटराइज एज में रह रहे हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान अवश्य हो, क्योंकि अब तो ज़्यादातर चीज़ें ही आदमी कंप्यूटर के माध्यम से करता है। और जहाँ तक उन्होंने डांस के विषय में बताया, क्योंकि वो एक लड़की हैं और महिलाओं का विशेष क्षेत्र होता है, उनकी इसमें विशेष पहुंच और एक मास्टरी होती है डांस के क्षेत्र में। अच्छा है, भविष्य में आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, हमारी सबकी यही कामना है। सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कम टू योर मॉनिटर सेट्स एंड द क्वेश्चन अपीयर्स, व्हिच एक्ट्रेस डिड क्रिकेट स्टार विराट कोहली मैरी? द क्वेश्चन इज which actress married cricket star Virat Kohli, and the options are A. Deepika Padukone, B. Sonam Kapoor, C. Anushka Sharma, and D. Priyanka Chopra. And the Hindi version of the question is, क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने किस अभिनेत्री से शादी की? बहुत सरल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है आप लोगों के इंटरेस्ट का। और इसके 4 विकल्प हैं, अ. दीपिका पादुकोण, बी. सोनम कपूर, सी. अनुष्का शर्मा और डी. प्रियंका चोपड़ा। आपको ये बताना है कि क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने इन 4 में से किससे विवाह किया, और आपका समय शुरू होता है अब। ये प्रतिभागी नंबर 3 हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने में सबसे अधिक लक्षिता ने रुचि दिखाई, क्योंकि अपने आप में बहुत सरल प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रिकेट भी हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय खेल है और अभिनेत्री तो आप जानती हैं, तो सभी युवाओं की मनपसंद विषय है। सो कंटेस्ट नंबर 3 मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनमें से किस अभिनेत्री से हमारे क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली ने विवाह किया? सही ऑप्शन बताएं। सर, द राइट आंसर इज सी, अनुष्का शर्मा। वो कहती हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है और वो अभिनेत्री हैं अनुष्का शर्मा। देखते हैं कि हमारी इस प्रतिभागी लक्षिता ने इस उत्तर को कहाँ तक सही दिया है। सो वी मूव टू द आंसर दिस क्वेश्चन। यस, शी इज वेरी राइट टू मेक करेक्ट आंसर। अनुष्का शर्मा एक बहुत अपने आप में नामी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने विराट कोहली से विवाह किया। सही उत्तर देकर लक्षिता आपने 20 अंक अर्जित किए। अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी अपनी विशेष रुचि का परिचय दिया। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा लक्षिता कि आपकी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपकी विशेष रुचि है, शिक्षा या शिक्षा से हटकर कोई भी दूसरा ऐसा क्षेत्र? सर, शिक्षा में तो फिलहाल है नहीं, पर स्पोर्ट्स में थोड़ी इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा, स्पोर्ट्स भी अपने आप में बहुत एक अच्छा क्षेत्र है और ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में चांसेस नहीं हैं। आजकल आपने स्पोर्ट्स कोटा के बारे में सुना होगा, बहुत से हमारे खिलाड़ी सब बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स पर हैं, और जिसमें आपने MS धोनी के बारे में तो खूब देखती और सुनती होंगी। वे सब स्पोर्ट्स कोटा के ही लोग हैं जो स्पोर्ट्स के द्वारा ही अपने अपने इस उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। स्पोर्ट्स में किस खेल में आप विशेष रुचि रखती हैं? सर, एयर राइफल शूटिंग। सो नाइस, सो नाइस। और आपने देखा होगा कि ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं उसमें हमारी जो लड़कियां हैं और महिला प्रतिभागी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं,
और काफ़ी उन्होंने पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित किए हैं। ये बहुत अच्छा है और शूटिंग का धामपुर भी अपने आप में एक अच्छा केंद्र बन चुका है। तो इस प्रतिभागी ने क्योंकि सही उत्तर दिया, 20 अंक अर्जित किए और काफ़ी अच्छा अपने इस फिल्मी क्षेत्र का ज्ञान हम सब काम रखा। तो हम चाहेंगे एक बार फिर उनका उत्साहवर्धन करें। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल गो फॉर ए शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत आपको क्या आपने अंक अर्जित किए, क्या अंक खोए, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए आते हैं, आप सब लोग कहीं ना जाएं और तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। Once again, I just welcome all the participants after the break, and I wish to tell them all the marks they have earned during this first part of the questionnaires. सभी अपने अपने अर्जित अंकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। मैं पहले क्रम में किस प्रतिभागी ने कितने अंक अर्जित किए इस विषय में बताना चाहूँगा। प्रतिभागी नंबर 1 वसुंधरा, शी इज रिप्रेजेंटिंग होली एंजल एकेडमी धामपुर, but unfortunately she has not gained any marks and at the same time she has lost 10 marks. उन्होंने अभी गलत उत्तर देकर प्रश्नों के 10 अंक खोए हैं। दूसरे प्रतिभागी हैं मिस्टर पुनीत, उन्होंने अभी तक इस प्रतियोगिता में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं, इसलिए वह केवल 0 अंक पर हैं। तीसरे प्रतिभागी हैं लक्षिता, एंड शी इज द फर्स्ट वन to gain the best marks, that is marks 40, so we should cheer for her. लक्षिता ने सही प्रश्नों के उत्तर देकर 40 अंक अर्जित किए हैं। प्रतिभागी नंबर 4 प्रियांशी सिंह, इन्होंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया उत्तर देने का, लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तर सही नहीं था, इसलिए उन्होंने 10 अंक खोए। 5वीं प्रतिभागी हैं गुलिस्ता, वह भी अभी 10 अंक खोकर किसी भी स्थान पर नहीं पहुंच पाई हैं। और अंतिम प्रतिभागी नंबर 6 हैं फरहीन, और इत्तेफाक से उन्होंने गलत उत्तर देने के कारण, हालांकि उनका प्रयास बहुत सफल रहा है, शी टुक मच रिस्क जस्ट टू मेक करेक्ट आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट अनफॉर्चुनेटली बाय मेकिंग रॉन्ग आंसर द क्वेश्चंस शी हैज लॉस्ट 20 पॉइंट्स। अंकों की इसी श्रेणी के वर्णन के बाद में पुनः मैं सभी प्रतिभागियों को एक बार इस मंच पर स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रश्नावली के इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन यू आर गेनिंग 20 पॉइंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली बाय मेकिंग रॉन्ग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन यू विल लूज 10 पॉइंट्स। एट द सेम टाइम इफ यू पुट द बजर बिफोर माई इंस्ट्रक्शन, आपका समय शुरू होता है अब, again you will lose 10 points. So my dear contestant, be alert, be attentive, and now we move to the next question of this round, and the question appears on your monitor sets. Please be attentive of that. The next question appears, and the question is, would you find Gibson Desert? The question is, in which country would you find Gibson Desert? And the options of the questions are A. Canada, B. Australia, C. South Africa, and D. Asia. These are the 4 options. And the Hindi version of the question is, Gibson Desert मरुस्थल किस देश में है? ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। A. कनाडा, B. ऑस्ट्रेलिया, C. दक्षिण अफ्रीका और D. एशिया। आपको इस डेजर्ट, इस रेगिस्तान के बारे में बताना है कि गिब्सन डेजर्ट किस देश में स्थित है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और एशिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढिए कि यह डेजर्ट, ये रेगिस्तान किस देश में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और एशिया।
अपनी बुद्धि पर जोर डालिए और अपने बुद्धि के खजाने से इसका सही उत्तर ढूंढने और बताने का प्रयास कीजिए। यस, इट इज contestant number 2, Mr. Puneet. So for the first time he has made his attempt to make the answer to question. उन्होंने प्रयास किया इस प्रश्न का सही उत्तर देने का। पुनीत, मैं जानना चाहूँगा कि आपके विचार से इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है, बताएं। ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। पुनीत कहते हैं कि इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दक्षिण अफ्रीका। देखते हैं कि पुनीत ने ये प्रयास जो किया है उसमें पुनीत जी कहाँ तक सफल होते हैं। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। इट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। पुनीत, आपने उत्तर देने का प्रयास किया, सराहनीय था आपका प्रयास, लेकिन उत्तर सही नहीं हुआ और सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। आपने इस गलत उत्तर देने के कारण 10 अंक खोए। फिर भी आपका प्रयास सचमुच पहली बार था और सराहनीय था। पुनीत, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्योंकि अभी विद्यार्थी जीवन से गुजर रहे हैं, आपके किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो या ज्ञान से हटकर कोई भी क्षेत्र हो, और उससे किससे संबंधित आपकी विशेष रुचि है, हम सबको बताने का प्रयास करें। जो विशेष आपकी रुचि का क्षेत्र है। माय हॉबी इज एक्सपेरिमेंट। सो नाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट कमिंग टू नो दिस काइंड ऑफ अनयूजुअल आंसर। इसके लिए पुनीत को हम बधाई देते हैं। उसने एक बिल्कुल अलग तरीके का एक क्षेत्र छांटा है, एक्सपेरिमेंट, जिसको हम एक हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस का विषय हो, अदर देन साइंस हो, हर एक जगह एक्सपेरिमेंट। पुनीत, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट खासकर आप करते हैं जिसमें आपकी रुचि है, बताएं हम सब लोगों को। मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स, यस। तो जैसे स्कूल्स में रोबोटिक लैब्स होती हैं, क्या आपने भी कभी इस प्रकार की लैब्स में प्रयास किया कुछ नई चीज़ बनाने का? कुछ अपने किसी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सबको बताएं। यस सर। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने का प्रयास करें। स्मार्ट डस्टबिन। किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट रहा ये, इसकी जानकारी सभी लोगों को दें। सभी प्रतिभागी यहाँ मंच पर हैं जो आपके इस उत्तर से लाभान्वित हों। सर, उसके पास ऐसे ही गार्बेज लेके आते थे, वो खुल जाता था और उसके अंदर गेट दो, वो बंद हो जाता था। ऑटोमेटिक डस्टबिन, ऑटोमेटिक डस्टबिन, यू हैव जस्ट मेड द एफर्ट। आपने एक ऑटोमेटिक स्वतः चलने वाला डस्टबिन बनाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा। क्योंकि आजकल पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ, और ये स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है कि हम अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंकें। सो डस्टबिन इज द बेस्ट मीन्स टू प्रोवाइड ऑल दिस गार्बेज ऑफ आवर हाउस। सो एक अच्छा प्रयास है और भविष्य में हम कामना करते हैं कि पुनीत इसी तरह से एक्सपीरियंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए एक अच्छे इंजीनियर बनकर अपने देश की सेवा करेंगे। इसके लिए पुनीत को बधाई। सो इन दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So please be attentive to find out the question on the monitor sets. The next question is, which actor played the role of Anand Kumar in the film Super 30? Very interesting question it is for you people. Which actor played the role of Anand Kumar in the film Super 30? And the options are A. Ranbir Kapoor, B. Hrithik Roshan, C. Tiger Shroff, and D. Ranveer Singh. These are the 4 options. एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, फिल्म सुपर 30 में आनंद कुमार की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? सुपर 30 एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म रही है और इसके 4 ऑप्शन हैं। A. रणबीर कपूर, B. ऋतिक रोशन, C. टाइगर श्रॉफ, D. रणवीर सिंह। आपको बताना है कि इन 4 कलाकारों में से किसने इस फिल्म में आनंद कुमार की भूमिका निभाई, और आपका समय शुरू होता है अब। It is contestant number 2, that is Puneet Kumar. So now Puneet is playing forward after making his attempt in the very first question. So Puneet, आपने प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ा और समझा और उसके 4 ऑप्शन भी आपने पढ़े।
रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह। आपके विचार से इसमें से कौन सा विकल्प सही उत्तर हो सकता है, बताएं। ऑप्शन बी, ऋतिक रोशन। पुनीत कहते हैं कि इस सुपर 30 में आनंद कुमार का रोल, उसकी भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है। देखते हैं उनका ये फिल्मी ज्ञान कहाँ तक उनको अंक अर्जित करने में सफलता देता है। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, ऋतिक रोशन। तो पुनीत, आपने बिल्कुल सही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दिया और सही विकल्प है ऋतिक रोशन। इस अभिनेता ने सुपर 30 में आनंद कुमार की भूमिका निभाई। सुपर 30 के बारे में पुनीत कुछ बताना चाहेंगे कि ये सुपर 30 क्या है? सर ये मूवी है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, ये मूवी का नाम है सुपर 30। लेकिन सुपर 30 कोई मूवी के अलावा कुछ इसके विषय में कोई जानकारी देना पसंद करेंगे? सुपर 30 सर मूवी देखेंगे। समाज में हमारे बीच में अनेकों महान पुरुष, महान दिमाग रहते हैं जो अपने अपने स्तर से समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाते हैं। तो ये एक मिस्टर आनंद कुमार हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि समाज के जो गरीब से गरीब तबके के विद्यार्थी हैं और जिनके पास पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो अपनी बुद्धि में बहुत आगे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने एक 30 बच्चों का एक ग्रुप उसको कोच करना शुरू किया आईटी के लिए। और पिछले कई वर्षों से उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि पा रखी है कि उनके 30 के 30 बच्चे आईटीएस बनते जा रहे हैं। तो ये सुपर 30 उन्होंने अपने उस कोचिंग ग्रुप को नाम दिया है, जिसमें केवल 30 बच्चों को आईटीएस की शिक्षा कोचिंग प्रदान करते हैं अपनी ओर से। और ये सब गरीब तबके के वो बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने का कोई साधन और कोई विकल्प नहीं होता है। उन्होंने अपने उसको दिया है सुपर 30, राइट। फर्दर क्वेश्चन of this questionnaire, and the next question comes to which country is the largest producer of bauxite? And the options are A, South Africa, B, North America, C, Australia, and D, India. These are the 4 options. And we come to the हिंदी वर्जन। हम इसके हिंदी वर्जन की ओर बढ़ते हैं प्रश्न की। आपका प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और इसके 4 विकल्प हैं। आ, दक्षिण अफ्रीका, बी, उत्तरी अमेरिका, सी, ऑस्ट्रेलिया और डी, भारत। आपको यह बताना है कि कौन सा देश सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज कंटेस्ट नंबर 6। फरहीन इज वंस अगेन देयर जस्ट टू मेक हर आंसर। फरहीन ने इसमें विकल्प देने का प्रयास किया है। फरहीन, ये क्वेश्चन आप समझा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 4 ऑप्शन पढ़े आपने, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया। फरहीन कहती हैं कि इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया द करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फरहीन ने सही उत्तर देने का कहां तक प्रयास किया है। एंड द आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया। शी इज वेरी करेक्ट इन मेकिंग आंसर एंड बाय मेकिंग दिस आंसर शी हैज गेन्ड 20 पॉइंट्स। सही उत्तर देकर उसने 20 अंक अर्जित किए और सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस बॉक्साइट का विश्व में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है और सही उत्तर देकर फरहीन ने अर्जित किए हैं 20 अंक। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली की श्रेणी में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बी अटेंटिव टू मॉनिटर सेट्स, एंड इट इज हु वाज इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर इन द रिसेंट इलेक्शंस इन महाराष्ट्र? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हु वाज इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर in the recent elections in Maharashtra? And the 4 options are A, Aditya Thackeray, B, Devendra Fadnavis, C, Uddhav Thackeray, and D, Sharad Pawar. These are 4 options: A, Aditya Thackeray, B, Devendra Fadnavis, C, Uddhav Thackeray, and D, Sharad Pawar. और इस प्रश्न का हिंदी वर्जन है, महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनाव में कौन मुख्यमंत्री चुना गया? ये इसके 4 विकल्प देखें, आपको इसमें सही विकल्प छाड़ना है। आ, आदित्य ठाकरे, बी,
देवेंद्र फडणवीस, सी उद्धव ठाकरे और डी शरद पवार। इन चार में से कौन अभी हाल में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए? और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज कंटेस्ट नंबर 5। गुलिस्ता ने सबसे पहला बजर दबाया और लगता है कि वह बहुत कॉन्फिडेंट है इसका उत्तर देने में, क्योंकि अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही ये कार्यक्रम हुआ। और अगर आप टीवी पर न्यूज़ देखने के शौकीन हैं तो आपको लगा होगा कि एक हफ्ता काफ़ी शोर शराबा बना रहा है इस प्रश्न का टीवी मॉनिटर्स पर। बताएं गुलिस्ता कि आपके विचार से इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो सकता है? सर ऑप्शन बी, देवेंद्र फडणवीस। गुलिस्ता कहती हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवेंद्र फडणवीस। उन्हें अभी हाल में जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसके आधार पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुना गया। देखते हैं गुलिस्ता ने सही बोला है या नहीं। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज सी, उद्धव ठाकरे। मैं समझता हूँ कि जितने प्रतिभागी यहाँ मंच पर विराजमान हैं, अधिकांश को उसमें से सही उत्तर पता रहा होगा, भले ही वो बजर दबाने में पीछे रह गए हों। उद्धव ठाकरे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हमेशा समाचार पत्रों के और टीवी न्यूज़ के संपर्क में रहा करें। इससे हमें पता चलता है कि हमारे मोहल्ले, गली और शहर से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें क्या हलचल हो रही है, क्या चल रहा है, उस सब की जानकारी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से होती है। सो गुलिस्ता, द करेक्ट आंसर इज उद्धव ठाकरे, जो अभी 3 भिन्न भिन्न पार्टियों की मिलीजुली सरकार के द्वारा उनको चीफ मिनिस्टर चुना गया। और मिस्टर उद्धव ठाकरे ये शिवसेना के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। उनको इन 3 पार्टियों ने मिलकर, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर इनको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुना, उद्धव ठाकरे। तो आपके इस गलत उत्तर देने के कारण गुलिस्ता आपको 10 अंकों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर आप कहाँ तक सही दे पाते हैं। सर एक बार हॉबी ले लो बच्चे की, आगे गुलिस्ता, आपने ये दूसरी बार प्रयास किया है प्रश्न का उत्तर देने का। आपका प्रयास अच्छा लगा, आपकी हिम्मत अच्छी लगी। गुलिस्ता, हम सब आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के या शिक्षा से हटकर जो और दूसरे विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें किस में आप अपना दखल रखती हैं, किस में आपका विशेष इंटरेस्ट है, हमें बताएं। सर बायोलॉजी, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा विषय है और जैसे हम सभी जानते हैं कि जिनको भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में जाने का जिनका टारगेट होता है, उनके लिए बायोलॉजी सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण विषय है और आपकी बायोलॉजी में विशेष रुचि है। आपने बायो को छाटा, बायो के अलावा भी और सारे इतने विषय आपने पढ़े हैं और आपके सामने ऑप्शन हैं। बताएं कि बायो क्या सोचकर आपने इसको अपना एक विशेष विषय बनाया? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। शी इज वेरी राइट टू कम टू द कंक्लूजन, क्योंकि हमें अपने भविष्य का निर्धारण छोटी अवस्था में करना पड़ता है और ये जो इसको हम हाई स्कूल बोलते हैं, 9-10, यहीं से हमारे भविष्य के निर्धारण की सीढ़ी शुरू हो जाती है। हमको यही तय करना पड़ता है कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और उसी के अनुसार हमें यहाँ पर विषय चुनने होते हैं। तो बायोलॉजी इस चिकित्सा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है एंड वी नीड टू गो फॉर द ऑप्शन बायोलॉजी इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। सो ईश्वर आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करे और आपका प्रयास सफल हो, ऐसी हम सबकी कामना है। नाउ वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस क्वेश्चनर। हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके मॉनिटर सेट पर है, कृपया उस पर ध्यान दें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन द अर्थ, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन and the 4 options are A. Amazon River, B. Ganga River, C. Orange River and D. Nile River. These are the 4 options and the Hindi version of the question is पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि आपके विचार से सबसे लंबी नदी कौन सी है और आपके ऑप्शंस हैं A. अमेजन नदी, B. गंगा नदी, C. ऑरेंज नदी और D. नील नदी। इन 4 नदियों में से
जो विश्व में सबसे लंबी नदी का जिसने मुकाम हासिल कर रखा है, आपको उसके बारे में बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज कंटेस्ट नंबर 3, दैट इज लक्षिता। वंस अगेन शी इज ट्राइंग टू प्ले फॉरवर्ड ऑल द टाइम। सो लक्षिता, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, ये 4 जो आपके सामने विकल्प हैं, अमेजन नदी, गंगा नदी, ऑरेंज नदी और नील नदी, आपको बताना है कि इन 4 नदियों में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सर ऑप्शन डी, नील नदी। लक्षिता कहती हैं कि 4 नदियों में जो विश्व में सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी। ये लक्षिता कुछ अपने ज्ञान से बताएंगे कि नील नदी कहाँ पर है? सर ऐसा तो नहीं पता सर, बस 8th क्लास में जीके में पढ़ा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उससे नॉलेज है। बिल्कुल सही कहा आपने। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं भी आपसे पहले प्रश्न में बोल रहा था कि किस देश की करेंसी, किस देश की राजधानी, नदियाँ, पठार, पहाड़, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं जो हम जीके के क्षेत्र में क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि लक्षिता अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल है। वी मूव टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज नील नदी। लक्षिता इज वेरी राइट टू से। ये आपने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा और उसमें एक देश है जिसे हम बोलते हैं इजिप्ट, मिस्र। ये मिस्र की नदी है नील नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी गिनी जाती है। तो लक्षिता ने फिर एक बार लंबी छलांग मारी है और 20 अंक अर्जित करके ये अपने अंकों का इजाफा करती जा रही हैं। अभी कुछ और उत्तर शेष हैं, देखते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेकर कितने अंक अर्जित करते हैं। लक्षिता के इस सही उत्तर के बाद हम बढ़ते हैं प्रतिभागी नंबर 4 की ओर और जानना चाहेंगे प्रियांशी, just tell me people what particular sort of hobby, what is the taste and interest you are having either in academic or in other fields? So only in study. Yeah, that's very good because एक विद्यार्थी का जो सबसे प्रथम ध्येय है वह है उसकी शिक्षा, जिसके लिए वो चल रहा है और जो उसने अपने जीवन का एक ध्येय बना रखा है। सो स्टडी में आपके पास कई विषय होंगे, उन विषयों में बताना चाहेंगे कि कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है जिसमें आप सोचती हैं कि मैं इसमें सर्वाधिक अंक अर्जित कर सकती हूँ? So mathematics. मैथमेटिक्स, बहुत अच्छा आपने मैथमेटिक्स के बारे में बताया। मैथमेटिक्स में ऐसी विशेष क्या है जो ऐसा, हर विषय के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है कि ये विषय इस तरह से उपयोगी हो सकता है, ये विषय इस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स के विषय में क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? तो उसमें एक तो फॉर्मूला वाइज होता है, लिखना नहीं पड़ता या लर्न नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड रहती है, तो उसमें इंटरेस्ट। ठीक है आपने कि जैसे और विषयों में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, वहाँ पर लैंग्वेज पर फोकस होता है, भाषा पर जोर होता है। मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भाषा का कोई प्रश्न नहीं है। और मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है, जो मैंने बहुत सी बुक्स और ज्ञानियों के द्वारा सुना और पढ़ा है, कि मैथमेटिक्स जो सबसे बड़ा गुण देता है वह है कंसंट्रेशन का, ध्यान केंद्रित करने का। एक महान राइटर फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि जिस विद्यार्थी, जिस व्यक्ति के अंदर ध्यान केंद्रित न होता हो, कमी हो, उसे मैथमेटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स टू जस्ट डेवलप कंसंट्रेशन। तो और ये भी सुना और कहा गया है कि मैथमेटिक्स और विषयों में भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसके और विषय अच्छे होते हैं, ऐसा सामान्यतया गुरुजन लोग कहते हैं। सो धन्यवाद आपके इस विषय में बताने का। सो नाउ वी मूव टू द फैग एंड ऑफ दिस क्वेश्चनायर। इस प्रश्नावली के अंतिम छोर की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें अपने मॉनिटर सेट्स पर। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state of India is the largest producer of sugar cane? Very plain, simple answer. Question: which state of India is the largest producer of sugar cane? And the 4 options are मध्य प्रदेश, B बिहार, C वेस्ट बंगाल, D उत्तर प्रदेश। इसका हिंदी रूपांतर है इस प्रश्न का, भारत का कौन सा राज्य गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको उस राज्य के बारे में बताना है और उन 4 राज्य का ऑप्शन है
A मध्य प्रदेश, B बिहार, C पश्चिम बंगाल और D उत्तर प्रदेश। मेरे बिना निर्देश के प्रतिभागी नंबर 6 ने, फहीम ने बजर दबाया। जैसा कि मैंने आपको 2 बार निर्देशित किया कि अगर आप बिना निर्देश के अपना बजर दबाएंगे तो आपको 10 अंकों से हाथ धोना पड़ेगा। सो सॉरी फहीम, बी अलर्ट नेक्स्ट टाइम। अभी प्रश्न चल रहा है और जब मैं आपको निर्देश दूंगा उसके बाद ही आप इसका बजर दबाएं। आपका समय शुरू होता है। कंटेस्ट नंबर 3, अगेन विदाउट माई इंस्ट्रक्शन शी हैज ट्राइड टू पुट द बजर। मैं आपको बार बार सचेत कर रहा हूं लेकिन आप वही गलती दोहरा रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है अब। नाउ इट इज कंटेस्ट नंबर 1 who has made the effort to put the buzzer and she is वसुंधरा। वसुंधरा, आपने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। आप बताएं कि आपके विचार से इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है? बताएं। आंसर इज उत्तर प्रदेश। She says, हाँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं और अपने चारों घर से आते समय स्कूल को गन्ना ही गन्ना देखती होंगी तो आप सोचते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। अच्छी बात है। देखते हैं कि आपने सही उत्तर देने का प्रयास किया है उत्तर प्रदेश बताकर। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज यस। वसुंधरा इज वेरी राइट टू से कि उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। सो नाउ वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पे अटेंशन टू मॉनिटर सेट्स और सचेत रहें। मैंने आपको पहले सूचित किया है, मेरे निर्देश के बाद ही केवल बजर दबाएं अगर आपको अपने अंक नहीं खोने हैं तो। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग is the oldest board under the Department of Commerce? And the 4 options are rubber board, tea board, coffee board and tobacco board। इसका हिंदी रूपांतर देखकर आपको प्रश्न और अधिक अच्छी तरह समझ में आएगा। इसका हिंदी रूपांतर है, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सबसे अधिक पुराना बोर्ड कौन सा है? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सबसे अधिक पुराना बोर्ड कौन सा है? और ये बोर्ड 4 प्रकार के आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। A रबर बोर्ड, B चाय बोर्ड, C कॉफी बोर्ड और D तंबाकू बोर्ड। ये 4 बोर्ड हैं जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है इन चारों में सबसे पुराना, इस पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक पुराना बोर्ड कौन सा है? और आपका समय शुरू होता है अब। वंस अगेन इट इज कंटेस्ट नंबर 1 वसुंधरा। उसने फिर बढ़ चढ़कर भाग लिया इस प्रश्न का उत्तर देने में और वह सबसे पहले बजर दबाने में सफल हुई। हम जानना चाहेंगे वसुंधरा से कि वसुंधरा, आपने जो प्रयास किया है उसके अनुसार आप क्या समझते हैं 4 बोर्ड में वाणिज्य विभाग के अंदर आने वाला सबसे पुराना बोर्ड कौन सा है? आंसर इज तंबाकू बोर्ड। वसुंधरा कहती हैं कि जो टोबैको बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड, ये वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाला सबसे प्राचीन बोर्ड है। देखिए, वसुंधरा ने बहुत विश्वसनीय तरीके से प्रयास किया है कि तंबाकू बोर्ड जो है सबसे पुराना बोर्ड है। देखते हैं कि उसका प्रयास किस सीमा तक सफल हुआ। बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी कॉफी बोर्ड। इट इज नॉट द टोबैको बोर्ड बट इट इज कॉफी बोर्ड, दैट इज द ओल्डेस्ट बोर्ड अंडर दिस कॉमर्स डिपार्टमेंट। So sorry, Vasundhara, you could not succeed in your attempt for making the correct answer to question। आप इसका सही उत्तर देने में सफल नहीं हो पाई और इसीलिए आपने खो दिए हैं 10 अंक। क्वार्टर फाइनल के इस प्रश्नावली के राउंड के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि 2 प्रतिभागी कंटेस्ट नंबर 2nd and 3rd have succeeded to come to some successful marks। लेकिन उनके अलावा जो हमारे 4 अन्य प्रतिभागी हैं नंबर 1, 4, 5, 6,
इन्होंने क्योंकि अभी अंकों को अर्जित करने की श्रेणी में किसी प्रकार का कोई सफलता नहीं पाई है, तो क्योंकि हमको इस राउंड में 3 प्रतिभागियों को चुनना है जो अगले सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे, तो इसीलिए एक अन्य प्रश्न आप सबके सामने मंच पर रखा जा रहा है। लेकिन मेरा आग्रह है कि पार्टिसिपेंट नंबर 2 and 3 they won't participate for making the answer of this question. The question comes only for contest number 1, 4, 5 and 6. केवल यही 4 प्रतिभागी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और मेरे निर्देश के बाद बजर दबाएंगे ताकि वो अंक अर्जित करने में सफल हो पाएं। सो नाउ आई मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चनायर। ये अंतिम प्रश्न है और ये चारों प्रतिभागी ध्यान से इस प्रश्न को अपने मॉनिटर सेट पर देखें और प्रश्न आपके समक्ष आता है अब। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गोलमाल सीरीज? जस्ट टू फील द क्वेश्चन, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गोलमाल सीरीज? एंड 4 ऑप्शंस आर ए रोहित शेट्टी, बी संजय शेट्टी, सी आदित्य चोपड़ा एंड डी साजिद नाडियावाल। So these are the 4 options and the हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है फिल्म गोलमाल सीरीज। ध्यान दें, फिल्म गोलमाल सीरीज के निर्देशक कौन हैं? और आपके सामने 4 विकल्प हैं, आ रोहित शेट्टी, बी संजय शेट्टी, सी आदित्य चोपड़ा और डी साजिद नाडियावाल। तो ये 4 प्रतिभागी कंटेस्ट नंबर 1, 4, 5 and 6 they will try to make the attempt to make the correct answer of this question। और ये चारों प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। It is contest number 6, she is Fareen once again, she has tried to put the buzzer। उसने इस प्रश्न के उत्तर देने का फरीन ने फिर प्रयास किया है। फरीन, सब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो 4 ऑप्शन पढ़े, रोहित शेट्टी, संजय शेट्टी, आदित्य चोपड़ा और साजिद नाडियावाल, इन 4 में से कौन गोलमाल सीरीज के निर्देशक हैं? बताएं। सी आदित्य चोपड़ा। फरीन कहती हैं कि इसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वह है सी आदित्य चोपड़ा। उनके विचार से आदित्य चोपड़ा इस गोलमाल सीरीज के निर्देशक हैं। देखते हैं कि फरीन अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुई। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर और इसका सही उत्तर है ए रोहित शेट्टी। फरीन, सॉरी टू से अगेन यू हैव मेड द रॉन्ग आंसर दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज रोहित शेट्टी। एज आफ्टर मेकिंग द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चनायर, क्योंकि उन प्रश्नावलियों के उत्तर देने के बाद भी केवल 2 प्रतिभागी ही अंक पाने में सफल हुए, लेकिन हमको इस क्वार्टर फाइनल राउंड में इस ग्रुप में 3 प्रतिभागियों की आवश्यकता है जो चुनकर नेक्स्ट राउंड सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। इसलिए उस तीसरे प्रतिभागी को चुनने के लिए मैं एक अतिरिक्त प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर देने में केवल 4 प्रतिभागी नंबर 1, 4, 5 and 6 ओनली दे विल टेक पार्ट इन दिस आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये 4 ही प्रतिभागी इस प्रश्न का उत्तर देने में प्रयास करेंगे। इनमें से लगता है कि अगर किसी भी प्रतिभागी ने जिसने बजर दबाया है, जिस प्रतिभागी ने बजर दबाया और वो उस प्रश्न का सही उत्तर देने में सफल नहीं हुआ, तो मैं प्रश्न को दोहराऊंगा और फिर जो शेष 3 प्रतिभागी रह गए हैं जिन्होंने बजर नहीं दबा पाया है, वो उसके उत्तर के लिए बजर दबाएंगे। जो भी प्रतिभागी बजर दबाएगा उसी को उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा और ये प्रक्रिया सही उत्तर पाने तक चलती रहेगी। प्रयास कीजिए कि आपके जो भी प्रतिभागी बजर दबाएं वो इस प्रश्न का सही उत्तर दें और अंक अर्जित करके उन सफल प्रतिभागियों में अपने आप को दर्शाएं, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। सो नाउ प्लीज बी अटेंटिव। बढ़ते हैं उस अंतिम प्रश्न की ओर जिसका उत्तर आप सभी 4 प्रतिभागियों को देना है। सो प्लीज बी अटेंटिव टू योर मॉनिटर सेट्स। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना? बी अटेंटिव, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना? एंड द 4 ऑप्शंस आर मदुराओ, बी पाटलिपुत्र, सी शाहजहांबाद, डी मैलौर
दीज आर द 4 ऑप्शंस। और इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर है पटना का प्राचीन नाम क्या है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में पटना का प्राचीन नाम क्या है। और ऑप्शंस हैं ए मदुराव, बी पाटलिपुत्र, सी शाहजहांबाद और डी मैलौर। ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं। ध्यान से पढ़िए, समझिए और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज कंटेस्ट नंबर 1। एक बार फिर वसुंधरा ने इसका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है और वसुंधरा अब हमको बताएंगी कि पटना का उनके विचार से प्राचीन नाम क्या है इन 4 ऑप्शन में, मदुराव, पाटलिपुत्र, शाहजहांबाद और मैलौर। आप हम सबको बताएं इसका सही ऑप्शन। Sir, answer is Patliputra. She says that out of these 4 options, option B पाटलिपुत्र is the correct answer। उसने अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए पहले बजर दबाया और अब उसने सही उत्तर देने का प्रयास किया है। देखते हैं कि क्या वह उन 3 सफल प्रतिभागियों की श्रेणी में अपने उस स्तर से पहुंच पाती है या नहीं। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र। उसने बिल्कुल सही कहा और ये एक अपने आप में दोनों नाम पटना और इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र बहुत ही प्रसिद्ध नाम है दोनों के दोनों। इतिहास में आप पढ़ते होंगे कि आजकल बहुत से स्थानों का नया नाम है और उनके प्राचीन नाम कुछ और थे। ये हमको जीके में और हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं। ये पाटलिपुत्र सही उत्तर देकर, सही ऑप्शन चुनकर वसुंधरा कंटेस्ट नंबर 1 ने अर्जित किए हैं 20 अंक। और इसके लिए हम सब एक बार फिर उन्हें करतल ध्वनि से उनको बधाई और उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर देकर अपना नाम उन 3 सफल प्रतिभागियों में जोड़ दिया है जो दे विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज आवर सेमीफाइनल राउंड। सो आउट ऑफ दिस 6 contestants, now we believe that 3 of them will move to the second round, and like this they will also prove their genius there on the stage of Genius Con season 3. So thank you so much for making the answers, whether correct or the wrong one, but all the participants सबने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी बधाई के पात्र हैं, चाहे उन्होंने अंक अर्जित किए हों या ना किए हों, क्योंकि अपनी विद्वता का परिचय वो पहले दे चुके हैं। हजारों प्रतिभागियों में से उन्होंने इस 36 प्रतिभागियों में अपने आप को जोड़ा। ये शो करता है कि वो अपने आप में काफ़ी बुद्धिमान हैं। और नेक्स्ट राउंड में जो हमारे सेलेक्ट होकर पहुंचेंगे, अभी आपको अपने अर्जित अंकों के बारे में बताया जाएगा। तो एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, कृपया कहीं ना जाएं, लौटते हैं तुरंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद पुनः सभी प्रतिभागियों का एक बार स्वागत और अभिनंदन। सभी प्रतिभागियों ने इन 15 प्रश्नों की प्रश्नावली का बढ़ चढ़कर उत्तर देने का प्रयास किया। एंड वट एवर अटेम्प्ट दे हैव मेड विद देयर अटेम्प्ट, दे हैव सर्टेनली सक्सीडेड टू सिक्योर बेटर मार्क्स। आफ्टर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर राउंड ऑफ क्वेश्चनायर, आप सभी प्रतिभागी अपने अपने द्वारा अर्जित अंकों को जानने के बारे में अत्यंत उत्सुक होंगे और इस क्वार्टर फाइनल राउंड का क्या परिणाम रहा, ये सभी के लिए एक जिज्ञासा का विषय है। मैं इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि जिन प्रतिभागियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर अंक अर्जित करने में सफलता पाई, उनके नाम भी, और जो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए, हालांकि उन्होंने प्रयास किया, काफ़ी अच्छा प्रयास किया, लेकिन सफल प्रतिभागियों की श्रेणी में वे प्रतिभागी जो नेक्स्ट राउंड इसके सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश करेंगे उसमें पहुंचने में सफल नहीं हुए।
ये हमारे कंटेस्ट नंबर 4 प्रियांशी, शी इज कंटेस्ट नंबर 4, शी कुड नॉट सिक्योर द प्लेस इन सेमीफाइनल राउंड. कंटेस्ट नंबर 5 शी इज गुलिस्तान एंड कंटेस्ट नंबर 6 फरहीन. दीज 3 कंटेस्टेंट, ये 3 प्रतिभागी इतने अंक अर्जित नहीं कर पाए कि वो अगले राउंड, हमारे सेमीफाइनल राउंड में जाकर अपनी विद्वता का परिचय दे पाएँ. लेकिन क्योंकि वो इस क्वार्टर फाइनल राउंड तक पहुंचने में सफल हुए और उन्होंने हज़ारों विद्यार्थी जो इस प्रतियोगिता में रिटन टेस्ट में बैठे उसमें अपना स्थान पाने में सफलता पाई, इसके लिए हम सभी उनको एक बार फिर इसका श्रेय देते हुए उनके लिए तालियों के गड़गड़ाहट का स्वागत. जो 3 प्रतिभागी जिन्होंने बहुत अच्छे अंक पाकर इस प्रतियोगिता में अगले राउंड के लिए स्थान प्राप्त किया, वह हमारे कंटेस्ट नंबर 1 वसुंधरा, कंटेस्ट नंबर 2 पुनीत एंड कंटेस्ट नंबर 3 श्री लक्षिता. सो दे secured better marks. Puneet this contest number 1 Vasundhara secured 20 marks, Puneet secured 10 marks, and the highest mark were achieved by Lakshita, the third contestant. She secured 50 marks. So clapping for her. अब क्योंकि ये प्रश्नावली का क्रम समाप्त हुआ, इस क्रम में मैं जो 3 प्रतिभागी जो हमारे अगले राउंड में पहुंचने सफल नहीं हुए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कि भविष्य में वह और बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में सीज़न 4 में भाग लें और फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल को पार करते हुए फाइनल में स्थान बनाकर सफलता पाएं, इसी कामना के साथ मैं उनको इस मंच से विदाई देना चाहूँगा. सो मैं अपने बीच में पधारे हुए श्री कुमार आशीष राजपूत जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे एक बहुत प्रगतिशील दुर्गा पब्लिक स्कूल के मैनेजर हैं, जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं. मेरा उनसे आग्रह निवेदन है कि इस प्रतिभागी नंबर 4 प्रियांशी को एक स्मृति चिन्ह देकर उसका भविष्य के लिए उत्साहवर्धन करें. श्री आशीष राजपूत जी. उत्साहवर्धन के पश्चात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन प्रतिभागियों का भविष्य के लिए अपने मुखारबिंद से कुछ आशीर्वचन देकर इनका मार्गदर्शन करें. श्री आशीष. धन्यवाद सर. सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने शरद राजवंशी जी को, उनकी पूरी टीम को, अभी तक चैनल को, और हमारे बड़े एंकरिंग कर रहे मित्र कहूँ, गुरु कहूँ, जो भी खैर, हमारे बड़े राकेश चमोली जी, बहुत सुंदर उन्होंने इस सारे आयोजन को किया. दूसरी बात, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो बहुत बधाई की बात है आपके लिए. और आप यहाँ तक पहुँचे, ये भी बहुत बड़ी बात है. और दूसरी बात, दूसरी बधाई इनके पेरेंट्स को, इनके टीचर्स को, जिन्होंने अपना समय इन बच्चों के साथ दिया और यहाँ तक लाए. बहुत दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, मुझे जानकारी लगी थी, संभल से और कहाँ से, हमारे यूपी के काफ़ी बड़े बड़े शहरों से और बहुत दूर दूर से बच्चों ने इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लिया. मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और दोबारा से अभी तक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. मेरा आग्रह है इस अभी तक चैनल के एमडी मिस्टर शरद राजवंशी जी से कि कृपया कुमार आशीष जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें. धन्यवाद आशीष जी. गुलिस्तान, इन्होंने भी अपना प्रयास, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, लेकिन वो अगले राउंड में जाने में सफल नहीं हुई. सो मेरा निवेदन है श्री सुगम जैन जी से, जो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, उत्तर प्रदेश व्यापार मंच के जिलाध्यक्ष हैं. मेरा निवेदन है श्री सुगम जी से, कृपया इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर उसका मार्गदर्शन करें. सुगम जी. मेरा निवेदन है सुगम जी से कि अपने वचनों से इन बच्चों का मार्गदर्शन करें ताकि भविष्य में ये और आगे बढ़ें अपने जीवन में. श्री सुगम जी.
धन्यवाद गुरु जी। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने कहा है कि ये तो हमारे कहते हैं ना कि जगत गुरु धामपुर के गुरु हैं। मैं सबसे पहले सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आप यहाँ तक आए, और अभी तक की पूरी टीम को, शरद राजवंशी जी, सुमित शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर यहाँ लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए हार जीत तो एक खेल में लगी रहती है, लेकिन जो बच्चे जीते हैं उन्हें तो बधाई है ही। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं एक दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि बेटा जिस दिन भी किस्मत का सिक्का उछलता है उस दिन टेल भी अपना होता है और हेड भी अपना होता है। धन्यवाद। धन्यवाद सोम जी, आपने बहुत संक्षेप में इन बच्चों का मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से आपके वचन प्रेरणा के स्रोत रहेंगे इन प्रतिभागियों के लिए। पुनः निवेदन है शरद जी से, कृपया इनको हमारे अतिथि सुगम जी को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित करें। इसी क्रम में हमारे प्रतिभागी नंबर 6 फरहीन, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। हमारे बीच में मिस्टर जहीन अंसारी जी जो अभी तक चैनल के नेटवर्क के रिपोर्टर हैं, हमारे बीच में विद्यमान हैं। मेरा उनसे आग्रह है कृपया इस प्रतिभागी को स्मृति चिन्ह देकर इसका मनोबल बढ़ाएं। श्री जहीन जी। धन्यवाद जहीन जी। मेरा निवेदन है एमडी श्री शरद जी से कि जहीन जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद जी। धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला के बाद ये जो हमारे बीच में 3 प्रतिभागी कंटेस्टेंट नंबर 1, 2 एंड 3, उन्हें विश यू बेस्ट ऑफ लक कहते हुए ये कि भविष्य में वो और आगे बढ़ें, सेमीफाइनल से फाइनल को बढ़ें। धन्यवाद। इस धन्यवाद ज्ञापन की श्रृंखला के बाद जो हमारे प्रतिभागी इस सेमीफाइनल राउंड में पहुंचने में सफल हुए, उनकी भविष्य की सफल कामना के साथ और सभी प्रतिभागी इसी तरह से बढ़ चढ़कर भविष्य में भी सीजन 4 में भी भाग लेंगे और सफलता के ऊंचाइयों को छुएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्वार्टर फाइनल राउंड को धन्यवाद और विदा कहता हूं। धन्यवाद।